Hello, students. I welcome you all once again to another session here, which is based on reading comprehension. We are about to discuss a few tricks based on reading comprehension along with a practice passage. So, फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग. Give me a quick acknowledgement and then I'll start the session. Now, यहाँ पे reading comprehension जो है, this is one of the most important topics when it comes to CDS exams. At least you get two passages with 5 questions each. दो पैसेज आपके पास मिलते हैं, 5 क्वेश्चंस ईच होते हैं. टोटल में 10 क्वेश्चंस जनरली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट्स या ट्रिक्स तो है नहीं, कॉन्सेप्ट्स तो नहीं है, बट ट्रिक्स ज़रूर है. आई विल बी डिस्कसिंग दोज ट्रिक्स ऑन हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, और मैं आपको पैसेज भी दिखाऊंगा. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, आई होप यू पीपल हैव जॉइंड माई टेलीग्राम ग्रुप. Okay, this is not the ID, this is the ID which you can see here. Okay, at IR Sir Textbook. Okay, this is the ID. इसमें आपको डेली PDF ऑफ ऑल YouTube सेशंस मिल जाएंगे, डिस्कशन डाउट सॉल्विंग मिल जाएंगे. You can directly interact with me, you'll get quizzes and you get polls as well. So if you have any doubts or queries, you can join this group and I will address those doubts. कोई भी doubts queries होगा तो get in touch with me and I will address those doubts as soon as I see them. इसके अलावा if you are preparing for CDS, AFCAT and CAPF guys, there is this ध्यान ज्ञान और सफलता sale going on and today is the last day for this particular sale. अगर आप CDS, CAPF, CRPF Constable, CDS, CAPF, AFCAT और AFCAT के लिए अगर preparation कर रहे हो तो you can actually opt for these courses to take your preparation to the next level. All you need to do is use this code JOSH to avail additional 90% discount. So that's the sale which is going on. Along with this, you get free textbook pass, which is up to 6 months subscription आपको मिलेगा, free textbook pass में भी. So ensure that you people join if you feel your basics are not strong enough and self study is not sufficient. Obviously किताब में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया रहता है, यहाँ पे बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल, सो दैट यू कैन क्रैक योर पेपर विद फ्लाइंग कलर्स. ओके, नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, CAPF, AFCAT, तीनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक कंबाइंड पैकेज भी हमारे पास है विच यू गेट 60% प्लस 35% ऑफ एंड यू गेट फ्री टेक्स्ट बुक पास विच इज़ फॉर एडिशनल प्रैक्टिस. ऑल यू नीड टू डू इज यूज दिस कोड जोश. जोश कोड को मत भूलिएगा, इस कोड से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. All the links are there in the description box below. You can click on that and enroll yourselves into our courses. चलो शुरू करते हैं agenda of this session. इस सेशन में हम क्या देखेंगे? We will go through tricks on how to go about solving a reading comprehension passage. एक reading comprehension passage को कैसे solve करना है वो देखेंगे. We will also go through a passage and understand it in order to answer questions based on it. So that's the agenda. ध्यान से समझिएगा, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ना सबसे पहले मैं बात करूँ, याद रखिएगा, एवरी पैसेज कंटेन्स द फॉलोइंग. हर एक पैसेज में ये 3 चीज़ें होंगी ही होंगी. व्हाट आर दोज? प्रीमाइस, आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन. एनी आर्टिकल यू पिकअप, कोई भी आर्टिकल, कोई भी पैसेज, कोई भी राइटअप में जो आप लिखा रहता है पूरा आर्टिकल, उसमें जनरली एक प्रीमाइस होता है जो पैसेज के शुरुआत में लिखा रहता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज. इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज जो है वो आपको प्रीमाइस वाले सेक्शन में मिलेगा. देन यू हैव द आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट इज़ नथिंग बट द डिस्कशन ऑन द टॉपिक. डिस्कशन ऑन द टॉपिक इज़ एक्चुअली आर्ग्यूमेंट. और कंक्लूजन होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैसेज वेर यू हैव द ऑथर्स ओपिनियन, व्यूज, आइडियाज एंड सॉल्यूशंस एट्सेट्रा. यू फाइंड इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैसेज. Argument is somewhere between the passage. तो शॉर्ट में इसे कहते हैं PAC, and all the passages do have these 3 things, PAC, which is premise, argument and conclusion. Now premise, argument, conclusion को हम कहते हैं explicit statements. These are called what? These are called explicit statements. Explicit statements का मतलब statements that are clearly mentioned in the passage are called explicit statements. जो भी स्टेटमेंट्स पैसेज में क्लियर कट मैंशन हो उन्हें एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स कहा जाता है. सो एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स दैट आर क्लियरली मैंशनड इन द पैसेज. जो भी इंफॉर्मेशन पैसेज में क्लियर कट लिखा हुआ है इन द लिटरल सेंस जिसे हम कहते हैं,
जो लिखा हुआ है मीनिंग सेम टू सेम है, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स। वहीं समझिए इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स क्या होता है। These are statements that are not clearly mentioned in the passage. This means that we have to identify the hidden meaning of the statements. Such hidden meanings are called implicit statements. Now, implicit statements जो है वो passage में clearly mentioned नहीं होते। कुछ लिखा होता है, आपको उसका hidden meaning infer करने की ज़रूरत पड़ती है। You have to identify the hidden meaning of that particular statement. So उसको हम कहते हैं implicit statements या implicit meanings बोला जाता है। ओके, सपोज कोई एक आम तौर पर अगर डे टू डे लाइफ में हम कई सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं जिसका हिडन मीनिंग कुछ और ही होता है। यू से समथिंग बट द हिडन मीनिंग इज समथिंग एल्स, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाता हूँ। नो एग्जाम्पल है, सपोज मैं कहता हूँ स्टेटमेंट है इट इज़ हॉट इन दिल्ली। ओके, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज़ हॉट इन दिल्ली, आई एम गोइंग टू शिमला। It is hot in Delhi, I am going to Shimla. Now what do you imply from the above statements? Okay, ये दोनों स्टेटमेंट को देख के आप आखिर क्या समझते हो कि what am I trying to say? Why am I going to Shimla? I don't like Delhi, इसलिए मैं शिमला जा रहा हूँ। My summer vacations have started, इसलिए शिमला जा रहा हूँ। My relatives live in Shimla, इसलिए जा रहा हूँ। शिमला is colder, इसलिए जा रहा हूँ। तो यहाँ में इन चार स्टेटमेंट्स में से कोई ऐसी एक स्टेटमेंट है जो मैंने क्लियरली बताया नहीं बट वो समझा जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं वी आर इम्प्लाइंग द मीनिंग। हम मीनिंग को इम्प्लाई करेंगे। इम्प्लाई का मतलब ही होता है हिडन मीनिंग। किसी चीज़ का हिडन मीनिंग पूछा जाए तो क्वेश्चन में इम्प्लाई करके होगा। बट यू पीपल आर काइंड ऑफ लकी बिकॉज CDS, AFCAT और CAPF एग्जाम्स में आपके मोस्टली एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस ही आते हैं, जिसका मतलब स्टेटमेंट में जो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी होंगे। रेयर केसेस में इम्प्लिसिट भी आ सकता है जहाँ पे आपको हिडन मीनिंग आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं कहता हूँ इट इज़ हॉट इन दिल्ली, आई एम गोइंग टू शिमला, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आप समझ सकते हो इन चारों ऑप्शंस में से? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड शिमला इज़ कोल्डर। शिमला इज़ कोल्डर इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ हॉट इन दिल्ली मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू शिमला, तो आप ये चीज़ इन्फर कर सकते हो या इम्प्लाई कर सकते हो हिडन मीनिंग कि यस शिमला इज़ कोल्डर एंड प्रॉब्ली दैट्स द रीज़न आई एम गोइंग टू शिमला। प्रीटी सिंपल। तो ये चीज़ कहते हैं, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स, जिसका हिडन मीनिंग आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। फ़र्ज़ करिए यहाँ पे इट इज़ हॉट इन दिल्ली ना लिख के मैं लिखता आई फील लोनली। ओके, स्टेटमेंट रहता आई फील लोनली, आई एम गोइंग टू शिमला, तब भी क्या शिमला इज़ कोल्डर ही आंसर होता? आई फील लोनली, आई एम गोइंग टू शिमला, तब आंसर क्या होता? आई डोंट लाइक दिल्ली, माई समर वेकेशंस हैव स्टार्टेड, माई रिलेटिव्स लिव इन शिमला, शिमला इज़ कोल्डर। तब आप ये स्टेट आंसर कर देते आई फील लोनली, आई एम गोइंग टू शिमला। तो येस, आपका लॉजिकल दिमाग ये सोचता है कि अगर आपको लोनली फील हो रहा है और आप शिमला जा रहे हो तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स वहाँ के होंगे, वहाँ पे होंगे, उनसे घुलोगे मिलोगे तो लोनली फील नहीं होगा। सो ये वाला लॉजिक मैं कह रहा हूँ, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। Explicit is something that is clearly mentioned in the passage. Implicit is where you have to identify the hidden meaning from the given statements or hidden meaning from the passage. Now, in order to select the correct answer, we have to apply the method of elimination with the help of implicit and explicit statements. सही आंसर पे पहुंचने के लिए आपको ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन याद रखना है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो याद रखना, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऑप्शंस में कोई ना कोई एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया जाता है जिसके कारण वो आंसर गलत होगा। ओके, जो पैसेज में दिया है वो तो होगा, बट कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अपने तरफ से ऐड कर दिया जाता है क्वेश्चन वाले ऑप्शंस में, तो आपको लगेगा कि वो सही है। तो यू हैव टू चेक वेदर देयर इज एनी एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी प्रकार का एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा तो वो रॉन्ग ऑप्शन होगा, आंसर होगा। उसके बाद देखना है डिलीशन। पैसेज में कुछ दिया है, स्टेटमेंट में भी काफ़ी सिमिलर सा दिया है, बट कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो ऑप्शन में से हटा दिया गया है, दैट विल ऑल्सो बी रॉन्ग। सो यू हैव टू चेक डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन।
उसके बाद आपको देखना है इररेलेवेंस। इररेलेवेंस का मतलब पैसेज में कुछ दिया है, ऑप्शन में कुछ दिया है, कोई मेल ही नहीं खा रहा है पैसेज के साथ, द इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट, सो दैट इज कॉल्ड इररेलेवेंस। तो इररेलेवेंस वाले भी गलत हो जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब कई सारे स्टेटमेंट्स आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। ओके, दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू सो दैट यू सेलेक्ट द रॉन्ग आंसर। सो डिस्ट्रैक्शन वाले ऑप्शन भी गलत होंगे, याद रखिएगा। पहचानना कैसे है, मैं अभी पैसेज करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ना, ये क्वेश्चन डिसाइड करके आप देखिएगा। अगर क्वेश्चन एक्सप्लिसिट है जिसका मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा वही इंफॉर्मेशन पूछ रहा है जो क्लियरली पैसेज में मेंशन्ड है, तो एक्सप्लिसिट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर पैसेज कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको हिडन मीनिंग पूछ रहा है तो वो इम्प्लिसिट हो जाएगा। इम्प्लिसिट क्वेश्चन अगर होगा तो इसमें ऐसे शब्द आ जाएंगे, व्हाट डू यू इम्प्लाई बाय द ऑथर स्टेटमेंट, और व्हाट डू यू इन्फर बाय द ऑथर स्टेटमेंट। ये सब वर्ड्स आएंगे तो याद रखना आपको हिडन मीनिंग आइडेंटिफाई करना है और हिडन मीनिंग बताना है। तो 4 ऑप्शंस में से आप देख के बता सकते हो। हालांकि CAPF में डिस्क्रिप्टिव होता है तो आपको लिखना ही पड़ेगा आंसर, एंड CAPF में मोस्टली मैंने देखा एक्सप्लिसिट ही होता है। क्लियर कट आंसर पैसेज में दिया है, आपको 1 या 2 लाइनर्स में आंसर को लिख के खत्म कर देना है, याद रखना ना। कई बार आपसे क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द पैसेज, पैसेज का स्टाइल क्या है। नाउ रिमेंबर, स्टाइल इज नथिंग बट द वे द पैसेज is written in. The way the passage is written in is basically the style of the passage. To enhance reading skills, always keep the structure in mind and try to search for it. Okay, passage को लिखने का तरीका, that is basically the style. Styles क्या क्या से हो, कौन कौन से हो सकते हैं? Descriptive हो सकता है, जैसे generalized topics हो, based on economy, inflation, okay, तो कई सारी चीज़ें, फॉरेन पॉलिसी, ये सब डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं डिबेटेबल, जिसमें फॉर एंड अगेंस्ट लिखा होता है ऑथर के द्वारा, किसी की अच्छाई बुराई, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों ही लिखा रहेगा, तो दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज। नरेटिव होता है जहाँ पे घटनाओं का वर्णन किया जाए या जनरली कोई स्टोरी वगैरह होगा, तो दैट इज नरेटिव पैसेज। कॉज एंड इफेक्ट, कोई कॉज लिखा है उसके बाद इफेक्ट लिखा है, व्हाट वाज द कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट कैन बी द इफेक्ट्स इन द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो कॉज एंड इफेक्ट होगा। एनालिटिकल में पैसेज कोई चीज़ ऐसा कोई चीज़ उठाएगा और सोचे उसमें उसके बारे में लिखेगा, एनालाइज करेगा एक प्रकार से। ओके, पैसेज इस प्रकार से होगा कि कोई चीज़ ऐसा है तो क्यों है, और उसी के बारे में वह डिस्कशन किया होगा पैसेज में, विश्लेषण किया होगा। कोई चीज़ ऐसा है तो आखिर क्यों है, ही विल हैव डिस्कस दैट, तो दैट इज एनालिटिकल पैसेज। उसके बाद कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर कॉन्ट्रास्ट आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, एनालिटिकल का भी मैं एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ। सपोज इंडिया का पॉपुलेशन अभी वर्ल्ड के सबसे टॉप में है, तब भी स्पोर्ट्स में इंडिया से बहुत कम लोग, अलग अलग क्रिकेट में ऑब्वियसली वी आर वेरी फेमस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे स्पोर्ट्स में हम उतना नाम नहीं कर पाते जितना कि हमसे कम आबादी वाले कंट्रीज कर लेते। तो उसका विश्लेषण अगर किया है तो इस प्रकार का पैसेज एनालिटिकल हो सकता है। कंपेयर कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, सपोज इंडियन इकोनॉमी वर्सेस द चाइनीज़ इकोनॉमी, हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क है, बट इस प्रकार का कोई कंपेयर कॉन्ट्रास्ट है तो वो कंपेयर कॉन्ट्रास्ट होगा। क्रिटिकल होगा कि क्रिटिसाइज कर रहा है ऑथर किसी स्पेसिफिक चीज़, प्रॉबेबली कोई गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके क्रिटिसाइज कर रहा है या किसी पब्लिक सिविल सेंस या सिविक सेंस को लेके कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। तो क्रिटिकल पैसेजेस होते हैं जहाँ पे वो निंदा करता होता है पूरे पैसेज में ऑथर। उसके बाद आता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम मेंशन करेगा एंड उसके बाद सॉल्यूशन। तो ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना कि क्या स्टाइल होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज स्टाइल. Style is nothing but the way the passage is written in. Now, the other things that will improve your reading skills are vocabulary, idioms and phrases. Obviously, guys, 25 to 30 minutes if you read every day, 25 से 30 मिनट अगर रीडिंग करोगे तो इट विल रियली इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ये आपको हेल्प करेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। ओके, ऑब्वियसली
आई एम श्योर आप मेरा द हिंदू वोकैब शो देख रहे होगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं कई सारे मैं ऐसे वर्ड्स लाता हूँ जो एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, 100% आएंगे। अब देखना एग्जाम में जाके बैठना, आप बोलना सर आपने सही बात, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ एंड फॉर श्योर 100% कर रहा हूँ। देखना पक्का कई सारे वर्ड्स अगर आप रेगुलरली वोकैब शो देखते आ रहे हो एग्जाम में आएगा ही आएगा, बीच CDS आप कैट CAPF। सिमिलरली इडियम्स फ्रेजेस भी रीडिंग अगर करते हो तो उससे इम्प्रूव होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ नहीं, उठा के ना द हिंदू एडिटोरियल के 2 आर्टिकल्स जनरली आते हैं डेली बेसिस पे द हिंदू एडिटोरियल में, उसको बैठ के पढ़ लो। आपको हिंदू एडिटोरियल ऐसे ही अवेलेबल हो जाएगा। यू कैन गो टू सम टेलीग्राम ग्रुप्स जिसमें ऐसे लोग शेयर करते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, और यू कैन परचेज द हार्ड कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर एंड देन रीड द हिंदू एडिटोरियल। उसमें क्या होगा, करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होगा, एट द सेम टाइम कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगा। सो लॉट ऑफ रीडिंग इज नीडेड, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ रीडिंग इज नीडेड, क्योंकि कई बार क्वेश्चन देख के आपको वापस आंसर में आना पड़ता है, क्वेश्चन देख के पैसेज में आना पड़ता है। तो इंक्रीज द आई स्पैन, एक स्कैनिंग एंड स्किमिंग टेक्निक आपको पता होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर है तो कहाँ है। ना कई लोग ये भी कहते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो 2-3, उसके बाद पैसेज पे आओ। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। अगर आप ऐसे लगता है कि आपका एक्यूरेसी बढ़ पा रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज गो थ्रू 2-3-4 क्वेश्चंस, गो थ्रू देम एंड देन कम टू द पैसेज। क्योंकि एक बार जब क्वेश्चंस पढ़ लेते हो आपको एक फेयर आइडिया रहता है कि इसका आंसर पैसेज में, जब पैसेज पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये क्वेश्चन था, इसका आंसर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। So when you read the questions and come to the passage, you have a fair idea as to where the answers to those questions lie in the passage. Passage में कहाँ पे उसके आंसर्स होंगे, ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिलता है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा क्वेश्चंस किस प्रकार के आ सकते हैं? क्वेश्चंस आर ऑफ 3 टाइप्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, वोकैबुलरी या इडियम बेस्ड। नो वोकैबुलरी और इडियम बेस्ड ऐसे याद रखना, हमेशा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखना। गाइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 चीज़ें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। वन इज अंडरस्टैंड द पैसेज वेल, सेकेंड इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो पैसेज में नहीं दिया है, यू कैन नॉट ऐड एनी इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन। अपने दिमाग मत लगाना, पैसेज के अराउंड ही आंसर देना जो इंफॉर्मेशन पैसेज में हो सकता है। ऐसा कोई टॉपिक आ जाए जिसमें आपको बेइंतहा नॉलेज हो उस टॉपिक के बारे में, लेकिन उस बेइंतहा नॉलेज को तब नहीं यूज करना है। प्लीज एंश्योर दैट यू रिमेंबर द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर गिवन इन द पैसेज, और उसके हिसाब से ही आंसर करोगे अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली। इसके अलावा वोकैबुलरी में भी कई बार होता है कि वोकैबुलरी एक वर्ड का जनरल मीनिंग कुछ और हो सकता है, बट कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग कुछ और ही हो सकता है। So please ensure that you answer vocab questions also in context of the passage. Sentence के हिसाब से उसका क्या मीनिंग हो रहा है उस हिसाब से आंसर करिए तो बेटर रहेगा। इसके अलावा आते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जहाँ पे पढ़ के आपको समझने की ज़रूरत है और समझ के आंसर करने की ज़रूरत है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पैसेज। प्राइमरी पर्पस क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है या थीम क्या है पैसेज का, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें याद रखिए दिस इज नथिंग बट द जिस्ट ऑफ PAC। जो भी ऑप्शन प्रीमाइस आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन का सार बताएगा दैट इज प्राइमरी पर्पस, सेंट्रल आइडिया और थीम। ओके, उसके बाद पूछा जा सकता है गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज। सो टाइटल शुड फोकस ऑन the entire passage। टाइटल जो है इट शुड फोकस ऑन द एंटायर पैसेज एज अ होल। टाइटल पूरे पैसेज पे फोकस करना चाहिए, पैसेज के पार्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, याद रखना। सो यू ऑलवेज सेलेक्ट द टाइटल दैट फोकसेस ऑन द एंटायर पैसेज एज अ होल। उसके बाद पूछा जा सकता है टोन ऑफ द पैसेज। नाउ कई लोगों को स्टाइल और टोन में फर्क नहीं पता होता, तो स्टाइल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टाइल इज द वे द पैसेज इज रिटन इन, but tone is the emotion which the passage brings in the reader। रीडर के अंदर जो इमोशन लेके आता है वो पैसेज, उसे हम कहते हैं टोन। जैसे कॉमेडी मूवीज देख के आप हंसने लगते हो, ह्यूमर इज द टोन।
कोई ट्रैजिक मूवी देख के आप रोने लगते हो तो सैडनेस, सॉरो इज द टोन, या ट्रैजिक भी टोन हो सकता है क्योंकि वो इमोशन आपके अंदर जगाता है। टोन आपके गाने के भी हो सकते हैं। कुछ गाने सुन के आप अपने स्कूल कॉलेज लाइफ को याद करते हो, दैट इज नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक टोन बन सकता है वो, क्योंकि आपको पुराने दिन याद आते हैं। तो सीरियस, ह्यूमरस, सार्कास्टिक, पेट्रियाटिक, इंस्पिरेशनल, नॉस्टैल्जिक, ये सब आपके टोन्स होते हैं। तो टोन इज नथिंग बट द इमोशन विच द पैसेज ब्रिंग्स इन द रीडर। मूवीज के टोन होते हैं, मूवी आपके अंदर कोई ना कोई इमोशन जगा सकती है, गाने आपके अंदर इमोशन जगा सकते हैं, नॉवेल्स आपके अंदर इमोशन जगा सकते हैं। वैसे ही पैसेजेस के भी टोन हो सकते हैं, तो टोन ऑफ द पैसेज कई बार पूछा जा सकता है। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टोन। स्टाइल इज द वे द पैसेज इज रिटन इन, टोन इज द इमोशन विच द पैसेज ब्रिंग्स इन द रीडर। इतना याद रखना। Now, let's attempt a passage and see how well you are able to answer the questions. Okay, it says read the following passage and answer the questions that follow. Passage कह रहा है Alaskan polar bears have mastered the art of living in ice. यहाँ पे आप समझ गए, पैसेज अलास्कन पोलर बेयर्स के बारे में बता रहा है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि अलास्कन पोलर बेयर्स ने माहिरता हासिल कर ली आइस में रहने की। आइस में रहने की माहिरता हासिल है उन्हें। Even during the frigid days of winter, these furry white creatures don't hibernate in cozy dens as other bears do. Okay, एक्सट्रीम ठंड में भी ये जो बेयर्स हैं, ओके, पोलर बेयर्स, या हाइबरनेट नहीं करते। हाइबरनेट का मतलब होता है गहरी नींद में चले जाना। कई सारे जानवर क्या होता है, ठंड के मौसम में दे गो इनटू अ लॉन्ग स्लीप फॉर 4 to 6 months, लंबी नींद में चले जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बेयर द कोल्ड। तो ठंड आने के पहले खूब खा के मोटे हो जाते हैं एंड दे गो ऑफ फॉर अ लॉन्ग स्लीप। जैसे घर में एग्जाम्पल देखो तो आपका हाउस लिजर्ड, अगर आपने गौर किया होगा, आपकी जो घर की छिपकली है ठंड के मौसम में हाइबरनेशन में चली जाती है, आपको दिखती ही नहीं है, कहीं कोने में जाके वो सो जाती हैं। जब हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस आता है वापस, देन दीज लिजर्ड्स कम आउट, ये भी हाइबरनेट करते हैं। तो कई सारे ऐसे जानवर हैं दैट हाइबरनेट, उसमें बेयर्स के ज़्यादातर प्रजाति हाइबरनेट करते हैं ठंड के मौसम में, लेकिन पोलर बेयर्स इसमें यूनिक हैं क्योंकि पोलर बेयर्स हाइबरनेट नहीं करते, वो लंबी नींद में नहीं जाते। ओके, डेंस का मतलब वो गुफा जहाँ पे ये जानवर रहते हैं। एंड एज अदर्स बेयर्स टू, दूसरे भालुओं की तरह ये हाइबरनेट नहीं करते। इंस्टेड दे गो नॉर्थ, बल्कि वो और भी नॉर्थ के तरफ जाते हैं, हंटिंग फॉर सील्स लिविंग इन दी आइस कवर्ड वाटर, और भी नॉर्थ के तरफ जाते हैं सील्स को हंट करने के लिए आइस कवर्ड वाटर में। इन रिसेंट ईयर्स हाउएवर, अर्थ्स क्लाइमेट हैज़ बीन गेटिंग वार्मर एंड आइस नियर द पोल्स हैज़ बीन मेल्टिंग। हाल के सीज़न में, हाल के ईयर्स में आपने देखा है कि अर्थ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और जो आइस है हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल में, ये आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है बहुत तेज़ी से। Now a new study shows that disappearing ice is changing polar bear behavior. अभी एक नया स्टडी किया गया है, विश्लेषण किया गया, जिसमें देखा गया है कि जो डिसअपियरिंग आइस है वो पोलर बेयर के बिहेवियर को ग्रेजुअली चेंज कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, मोर देन हाफ ऑफ प्रेग्नेंट पोलर बेयर्स यूज्ड टू गिव बर्थ इन डेंस ऑन सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ आइस दैट वर फ्लोटिंग आउट इन सी। कह रहा है ऐसे आमतौर पर आधे से ज़्यादा जो प्रेग्नेंट पोलर बेयर्स होते हैं वो सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ, बहुत बड़ा बड़ा ब्लॉक्स ऑफ आइस सी में रहता है, वहाँ पे वो अपने बच्चे देते थे। ओके, देते हैं आमतौर पर। ओके, सो आमतौर पर आधे से ज़्यादा पोलर बेयर्स सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ आइस में बच्चे देते हैं। ओके, लेकिन टुडे दे आर डिगिंग देयर डेंस ऑन और नियर लैंड। अभी क्या हो रहा है, वो अपने गुफा लैंड या लैंड के नज़दीक उन्होंने अपना गुफा खोदना शुरू कर दिया। द रीज़न, मोस्ट ऑफ द आइस हैज़ डिसअपियर्ड। क्या कारण है, ज़्यादातर आइस वहाँ पे पिघल चुका है। डिसअपियर्ड मतलब यहाँ गायब हो गया, कैसे गायब होगा, पिघल के ही। तो मोस्ट ऑफ द आइस हैज़ डिसअपियर्ड। Studies have shown that 27% of sea ice in the Arctic that stays frozen from year to year has disappeared during the past 30 years. Okay, 27% जो सी आइस होता है वो देखा गया है कि आर्कटिक में 27% सी आइस पिछले 30 सालों में मेल्ट हो चुका है ऑलरेडी। 27% ऑलमोस्ट, पिछले 30 सालों में जितना था उसका 27% मेल्ट हो चुका है ऑलरेडी। सो जस्ट इमेजिन द स्पीड एट विच इट इज़ मेल्टिंग।
सो देयर इज नाउ मच लेस स्पेस फॉर डेंस, तो अभी बहुत कम स्पेस रह गया है गुफाओं के लिए. मोरओवर एज वार्मिंग कंटिन्यूज द रिमेनिंग आइस बिकम्स लेस स्टेबल. जैसे जैसे वार्मिंग बढ़ता जा रहा है रिमेनिंग आइस बिकम्स लेस स्टेबल, ना स्टेबल नहीं रहता. दीज कंडीशंस आर अनअपीलिंग टू मदर पोलर बेयर्स. ये कंडीशंस जो हैं, जो लेस स्टेबल हो जाते हैं आइस, ये कंडीशंस जो हैं वो मदर पोलर बेयर को उतना भाते नहीं है बच्चा देने के लिए. हु वांट अ सेफ प्लेस टू गिव बर्थ. उनको अनस्टेबल आइस तो नहीं चाहिए, उनको सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ आइस चाहिए, लेकिन मेल्ट होके ये अनस्टेबल हो जाते हैं आइस, बट उनको एक सेफ प्लेस चाहिए टू गिव बर्थ. अ मदर पोलर बेयर ऑफन हैज 2 cubs एट अ टाइम. आमतौर पर 2 cubs होते हैं मदर पोलर बेयर के. बेबी cubs स्टे विद द मदर्स फॉर मोर देन 2 years. बेबी cubs 2 साल से ज़्यादा अपने माँ के साथ रहते हैं. फॉर नाउ अलास्का's polar bears seem to prefer returning to land rather than taking the risk of giving birth on shaky ice. अभी तो ये देखा जा रहा है कि अलास्का के पोलर बेयर्स जो हैं वो लैंड में आके बच्चा दे रहे हैं. ओके, दे आर गिविंग बर्थ ऑन लैंड रादर देन गिविंग ऑन शेकी आइस बिकॉज इट्स वेरी रिस्की. दैट सोल्यूशन माइट नॉट वर्क फॉर एवर, हाउएवर, especially if the ice keeps melting. कहते हैं लैंड पे आके giving birth, okay, the polar bears keep coming to land and give birth. This solution may not work forever, क्योंकि polar bears वैसे बने नहीं है लैंड में रहने के लिए, वो आइस में रहने के लिए बने. Okay, however, especially the ice keeps melting. The bottom line, polar bears are in trouble. Indirectly author कह रहा है कि polar bears जो हैं वो ट्रबल में हैं, वो विलुप्ति के कगार पे हैं. They are on the verge of extinction. Okay, तो obviously they are meant to live in ice, on ice, but अगर लैंड पे आने लगे तो they are not meant, उनका नेचर ही वैसा नहीं है, तो gradually their numbers may decrease and they may become extinct as well. So that's the passage. I hope you've understood. A very simple passage, not at all difficult. अभी देखते हैं questions. पहला क्वेश्चन कह रहा है During frigid winter, Alaskan polar bears don't lie dormant in dens as. Frigid winter, extreme winter में भी Alaskan polar bears inactive नहीं पड़े रहते अपने गुफाओं में. क्यों? Because there is ice covered water all around. Ice covered water. This is irrelevant. कोई information था ही नहीं. Okay? They have mastered the art of living in ice. Yes, they have mastered. First line में ही लिखा गया है अलास्कन पोलर बेयर्स इनएक्टिव पड़े नहीं रहते डेन में ड्यूरिंग फ्रिजिड विंटर, क्योंकि वो मास्टर बन चुके हैं आइस में रहने के. क्लाइमेट यूज टू बिकम वार्मर, अगेन इररेलेवेंट, मेंशन्ड ही नहीं है. ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता. सो बी इज एब्सोल्युटली राइट, दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ लिविंग इन आइस. अगला क्वेश्चन है चेंज इन पोलर बेयर्स बिहेवियर इज ड्यू टू. पोलर बेयर का जो बिहेवियर है लैंड पे आके अपने डेंस बनाने का, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज बेयर्स हंट फॉर सील्स इन द आइस कवर्ड वाटर, इररेलेवेंट. स्टेइंग एक्टिव इवन ड्यूरिंग द फ्रिजिड विंटर्स, doesn't go in tandem with the question. Melting of ice near the poles, yes. Behavioral change क्यों हो रहा है? Because the ice is melting and because the ice becomes less stable, they are returning to land to dig their dens. So melting of ice near the poles, that's the reason of the change in polar bears behavior. अगला क्वेश्चन कह रहा है according to the passage, Alaskan polar bears returning to land has increased. पैसेज के हिसाब से अलास्कन पोलर बेयर्स का लैंड पे आना इंक्रीज हो चुका है. क्यों? बिकॉज ओनली 27% ऑफ सी आइस इन आर्कटिक दैट रिमेन्स फ्रोजन. दिस इज डिस्ट्रैक्शन, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है. क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है 27% पिघल गया है 30 सालों में, बट यहाँ लिखा है 27% ही बचा हुआ है. तो देयर इज डिफरेंस. 27% का आइस पिघल जाना और 27% ही बचा रहना. तो यहाँ पे लिखा है ओनली 27% इज रिमेनिंग, विच इज रॉन्ग. दिस इज डिस्ट्रैक्शन, सो दिस इज रॉन्ग. In north, seals population decreasing, making hunting difficult. Such information is not mentioned in the passage, so irrelevant again. Dens on land is much better space to stay active in frigid winters. Again, trying to distract you. Land में रहना ज़्यादा better option है frigid winters में. गुफा लैंड में बनाना क्योंकि ज़्यादा गर्म रहता है. उनको गर्मी चाहिए ही नहीं because they are masters of living in ice. Distraction.
So D is correct. As warming continues, the ice becomes less stable. Okay, and that's the reason polar bears returning to land has increased. So D is absolutely right. If you guessed that, you were correct. अगला सवाल, which word in the passage is the synonym for vanish? Vanish का synonym conceal, hibernation, disappeared, hidden. So vanish का होगा disappeared, गायब हो जाना. Obviously कैसे गायब हुआ? Melt हो गया. Conceal का मतलब होता है छुपा देना, hide. Hidden मतलब छिपा हुआ. Hibernation is a long sleep. Already explained, कुछ जानवर winters में ये करते हैं, that is hibernation. So C is the correct answer for this question. अगला सवाल है, as per the passage which is not the permanent way out. पैसेज के हिसाब से इन चारों में से कौन सा एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है पोलर बेयर्स के लिए? ओके, प्रेफरिंग टू गिव बर्थ ऑन लैंड रादर देन शेकी आइस. यस, दिस इज नॉट अ परमानेंट वे आउट, क्योंकि ऐसे होता रहा तो देयर नंबर्स विल डिक्रीज एंड दे मे बिकम एक्सटिंक्ट. सो ए इज करेक्ट. स्टेइंग डॉर्मेंट इन कोजी डेंस. डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव. कोजी डेंस में इनएक्टिव रहना ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. नहीं, डिस्ट्रैक्शन. मेल्टिंग अप ऑफ आइस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. नो, आई एम आस्किंग फॉर द पोलर बेयर्स के लिए प्रेफरिंग टू गिव बर्थ. In the north, hunting of seals on ice covered water, this is also wrong. So go with the A option, which is absolutely correct. Okay? So this is how you go about solving a reading comprehension passage. Comment करके बताइएगा कितने लोगों के पांचों आंसर सही हुए इस सेशन में, इस पैसेज में पांचों आंसर सही हुए, नीचे कमेंट करके बताइएगा. Alright guys, इसके अलावा इस सेशन में इतना ही था. इसके अलावा ये बता दूं, people preparing for CDS, AFCAT, CAPF and other competitive exams, okay, there is a huge discount which is Dhyan, Gyan और Safalta sale which is going on, where you get up to 90% off along with टेस्ट बुक सुपर फॉर 6 months. टेस्ट बुक सुपर में आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलते हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, CAPF, CRPF और AFCAT, इन सभी के अलग अलग कोर्सेज हैं. इफ यू वांट टू अवेल दिस डिस्काउंट, यू कैन यूज दिस कोड जोश. Okay, all the links are there in the description box below. If you really want to take your preparation to the next level, do use this code and enroll yourselves in our courses. इस कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताया जाता है उसमें. उसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस, डाउट्स का असिस्टेंस मिलेगा. यू कैन इंटरेक्ट विद अस. सो देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग द कोर्स. सो इसका आज लास्ट डेट है गाइस, 22nd of June. डू नॉट मिस दिस ऑफर. So that was it in this session. Join me on the Telegram group. Link is there in the description box below. So that was it. ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए. रीडिंग हैबिट्स भी बढ़ाइए. रेगुलर रीडिंग हैबिट्स विल हेल्प यू इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन. So that was it in this session. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय. स्टे सेफ. टेक केयर ऑफ यू.